Industrial Disputes Act 1947. This act basically इस act में 7 chapters हैं, chapter 1 to 7, and then there are 40 sections which we need to remember. Let us go through a quick walkthrough. So initially chapter 1 में there is preliminary definitions. जो हैं इस एक्ट में मेजर, जैसे इंडस्ट्री क्या होती है, डिस्प्यूट क्या होता है, ले ऑफ क्या होता है, टर्मिनेशन क्या होता है. The basic definitions are under section 2. The chapter 2 deals with the authorities under this particular act. तो अब जैसे कोई डिस्प्यूट हुआ तो डिस्प्यूट सेटल करने के लिए there is a proper industrial relations machinery. तो उसमें वर्क्स कमिटीज आती हैं, then there are conciliation officers, there is board of conciliation, there is a court of inquiry. Then these are basically for conciliation and mediation. Now when it comes to adjudication, जब उस पर बहस होती है और जब लेबर मैटर्स पे एडजुडिकेशन होती है, केसेस होते हैं, तो वहाँ लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स और नेशनल ट्रिब्यूनल्स आते हैं. चैप्टर 2A deals with notice of change. Notice of change, basically this act says कि once an employee has been hired by an establishment or undertaking, his conditions of service shall not be changed without giving him prior notice under this act. So the provisions related to notice of change are mentioned in section 9A, and there's a particular schedule also on which matters can we give notice of 2 weeks or maybe beyond 2 weeks, and on which matters जिसमें notice देने की ज़रूरत भी नहीं होती है. So all these are mentioned in 4th schedule. Chapter 2B जो है deals with grievance handling authorities. Chapter 3 is an important chapter, deals with the references of disputes to both courts and tribunal. So basically approach क्या होती है कि जब भी कोई industrial dispute आता है तो initially there is an internal there's an internal procedure for mediation and conciliation कि उसको peacefully settle किया जाए दोनों parties में से, and if it does not get sorted, then the references can be made to courts or conciliation or maybe conciliation boards or labor court या tribunal में. So that comes under the adjudication part. Section 10A deals with voluntary references to dispute. Chapter 4 में powers and procedures of duties and duties of the authorities. तो जो chapter 2 में authorities हैं उनकी powers और procedures जो वो follow करेंगे chapter 4 में दिया हुआ है. Chapter 5 deals with strikes and lockouts. Strikes is basically from the employee side when there is surrender to when there is basically what can we say कि काम हड़ताल हो जाए कि भाई काम पे बंदी लग जाए एम्प्लॉय साइड से, एंड व्हेन द सेम इज डन फ्रॉम द एम्प्लॉयर साइड कि एम्प्लॉयर ने ताला लगा दिया फैक्ट्री पे, इट इज नोन एज लॉकआउट. ठीक है, तो विल गेट इनटू द फॉर्मल डेफिनेशंस आल्सो. तो अभी हम लोग जस्ट वी आर टेकिंग अ वॉक थ्रू कि इस एक्ट में है क्या क्या. चैप्टर 5A डील्स विद ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट. सो ले ऑफ इज समथिंग विच ले ऑफ इज समथिंग दैट मीन्स laying off is termination other than disciplinary proceedings. किसी को disciplinary proceedings के अलावा अगर किसी ग्राउंड पे termination of service होता है तो उसको हम लोग lay off कहते हैं. And retrenchment is the inability of the employer to provide work. Although we'll discuss it in detail later on. I'm not sure अभी कितना हम लोग डिटेल में जा सकते हैं. तो Chapter 5B deals with special provisions related to layoff, retrenchment, closure of establishment. Chapter 5C is very important. It has 2 main provisions, section 25T and U. So Chapter 5C is dedicated to unfair labor practices. ठीक है, unfair labor practices क्या क्या होती हैं, जैसे collusion हो गया unions का आपस में, or maybe employer trying to influence the labor union. And then there are specific terms also which we'll discuss later when we study this chapter. Chapter 6 deals with penalties for any offenses or illegal acts committed under this particular act. And then there are some miscellaneous provisions under chapter 7, the last chapter. Okay, so ये भी बहुत important है, सारे schedules हमें याद होने चाहिए.
First schedule deals with industries which are declared as public utility services. Public utility services क्या होती हैं? Those industries which are declared by through a notification by an appropriate government. जैसे बिजली, पानी, ऐसी essential services होती हैं, इनको हम public utility services कहते हैं और government इसको notify करती है. ठीक है. Second schedule deals with jurisdictions of labor court. Third schedule deals with jurisdiction of industrial tribunal. ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन होगी वो लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन का सुपर सेट होगी. ठीक है. तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बेसिकली उसकी जुरिस्डिक्शन आ जाती है मैटर्स इन सेकंड एंड थर्ड शेड्यूल. हाउएवर जो लेबर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इट इज ओनली फॉर मैटर्स रेफर्ड इन द सेकंड शेड्यूल. ठीक है. फोर्थ शेड्यूल डील्स विद कंडीशंस फॉर नोटिस ऑफ चेंज, जो हमने वहां सेक्शन चैप्टर 2 में या सेक्शन 9 और समथिंग में पढ़ा था. व्हाट वाज इट? हाँ, सेक्शन 9 में. ठीक है. तो फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. सो व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस एक्ट? मेन पर्पस इज इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट. जुरिस्डिक्शन क्या है? होल ऑफ इंडिया. केम इनटू फोर्स ऑन 1st April 1947. ठीक है. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है? अब डेफिनेशंस में हम लोग जाएंगे. सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन है कि मान लो कि कोई डिस्प्यूट होता है. सो इफ द डिस्प्यूट वेयर द इंडस्ट्री वेयर द डिस्प्यूट कम्स इन, इफ इट इज अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. रेलवेज के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. कंट्रोल्ड इंडस्ट्री जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. डॉक लेबर बोर्ड में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. IFCI में सेंट्रल गवर्नमेंट, ESIC में सेंट्रल गवर्नमेंट, देन कोल माइंस प्रोविडेंट फंड में सेंट्रल गवर्नमेंट, EPFO में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, LIC में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, एंड देयर इज अ गैमेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. ठीक है. मेजर पोर्ट वेयर इन 51% से ज़्यादा स्टेक अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट होगी. सारी CPSEs जो होती हैं, सेंट्रल PSUs, उसमें भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. अच्छा, इन रिलेशन अब स्टेट गवर्नमेंट कब होगी? जैसे स्टेट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में होगी, या स्टेट की सब्सिडरी कंपनीज या जॉइंट वेंचर्स होंगी. ठीक है. या ऑटोनॉमस बॉडीज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाई स्टेट गवर्नमेंट होंगी. ठीक है ना. नाउ दिस ये जो है इंपॉर्टेंट क्लॉज है. मान लो कि कोई डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है, बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर. ठीक है. कॉन्ट्रैक्टर है और उसकी जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर उसने लगाई है वहां पे डिस्प्यूट होता है. तो ऐसे केस में देखा जाएगा कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, ठीक है ना, द इस्टेब्लिशमेंट वेयर इन एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट वेयर सच डिस्प्यूट फर्स्ट अरोज द, ठीक है ना, ये जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसके कंट्रोल में? जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वो किसके कंट्रोल में? अगर तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं तो स्टेट गवर्नमेंट होगी. ठीक है. सेक्शन 2AA में आर्बिट्रेटर. आर्बिट्रेटर का मतलब होता है न्यूट्रल अंपायर, कि जो आर्बिट्रेशन के केसेस में होता है वो दोनों पार्टी से इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल होना चाहिए. ठीक है ना. एवरेज पे क्या होती है कि एवरेज पे, मान लो इस एक्ट में अगर हम रिट्रेंचमेंट ले ऑफ में कंपनसेशन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पे ऑफ द वर्कमैन की जो डेफिनेशन है, अगर मान लो मंथली पेड वर्कर है तो 3 मंथ्स का एवरेज लेंगे, वीकली पेड है तो 4 वीक्स का, डेली पेड में 12 फुल वर्किंग डेज का लेंगे. ठीक है. अवार्ड मीन्स इंटरिम और फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बाय एनी लेबर कोड, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप कंसिलिएशन बोर्ड का जो अवार्ड है उसको अवार्ड लेंगे, नहीं, दैट डज नॉट कम, क्योंकि वहां पे केवल लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, नेशनल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल का जो फाइनल वर्डिक्ट होता है दैट इज रेफर्ड टू एज अवार्ड. ठीक है. बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन. क्लोजर की डेफिनेशन क्या है? परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंसिलिएशन ऑफिसर्स अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट. ओके, व्हाट इज अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री? कंट्रोल्ड ऑफ विच by the union has been declared by a central act. ठीक है. we've already discussed this. ठीक है ना. कोर्ट मीन्स कोर्ट ऑफ इंक्वायरी. एम्प्लॉयर क्या होता है? एम्प्लॉयर की डेफिनेशन क्या है? मान लो इन रिलेशन टू एनी इंडस्ट्री कैरिड आउट और बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ अ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और अ स्टेट गवर्नमेंट, द अथॉरिटी प्रिस्क्राइब्ड ऑन बिहाफ
और वेयर नो अथॉरिटी इज प्रिस्क्राइब द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मान लो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है और अथॉरिटी प्रिस्क्राइब नहीं है, तो एम्प्लॉयर को किसको लेंगे, एचओडी को लेंगे। लोकल बॉडी में सीईओ ऑफ द लोकल बॉडी इज एम्प्लॉयर। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो होता है ट्रेड यूनियन में, एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, वो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में आ जाती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में। ठीक है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2J में है। वन डेफिनेशन इज द क्लासिकल डेफिनेशन जो ये एक्ट में ऑलरेडी मेंशन्ड है, एंड द अदर डेफिनेशन इज द वन गिवन अंडर द 1982 अमेंडमेंट। याद रखो कि ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। ठीक है, विल लुक एट बोथ दिस डेफिनेशंस और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो जो क्लासिकल डेफिनेशन है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 में, वो कहते हैं कि इंडस्ट्री मीन्स बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स। बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, और एनी कॉलिंग ऑफ सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन। ठीक है, दिस रेफर टू एज इंडस्ट्री। ठीक है, और जो नई वाली डेफिनेशन हमारी है वो क्या कहती है, इंडस्ट्री इज अ systematic activity carried out by cooperation between the employer and his workmen for production, supply or distribution of goods and services to satisfy human wants and wishes. But those wants and wishes वो religious या spiritual नहीं होनी चाहिए, merely religious या spiritual नहीं होनी चाहिए, whether or not। अब इसमें ये देखेंगे भाई कैपिटल इन्वेस्टेड है या नहीं इन्वेस्टेड है, दोनों केस में इंडस्ट्री का माना जाएगा। एक्टिविटी में मोटिव ऑफ प्रॉफिट है या नहीं है, माना जाएगा। एनजीओज भी आ गए इसमें। ठीक है, बाकी हाउएवर इट डज नॉट इंक्लूड एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, एनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन एक्सेप्ट प्लांटेशन। इसमें आ जाता है कि प्लांटेशन जो है, मगर एग्रीकल्चर ऑपरेशन है तो उसमें याद रखना कि इंटीग्रेटेड मैनर में अगर है तो फिर उसको, और प्रीडोमिनेंट वन अगर एग्रीकल्चर है तो इंडस्ट्री माना जाएगा। ठीक है, फिर हॉस्पिटल्स इंडस्ट्री में नहीं आते हैं। एजुकेशन, साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डू नॉट कम अंडर इंडस्ट्री। चैरिटेबल एंड सोशल को हटा दिया। खादी एंड विलेजेस रिफर्ड। सॉवरेन फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सच एज डिफेंस, रिसर्च, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस आर नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री। डोमेस्टिक सर्विस, प्रोफेशन प्रैक्टिस्ड बाय इंडिविजुअल और a body of individuals is not industry. Or cooperative society with less than 10 members are exempted from the status of industry under the Industrial Disputes Act. ठीक है, तो however this has not been implemented, ये not implemented है। However this amendment was brought in 1982. ठीक है, डिस्प्यूट क्या होता है, डिस्प्यूट की डेफिनेशन सेक्शन 2K में है। 2K में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर वर्कमैन। तो ई आर और ER, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। ठीक है, तो डिफरेंस जो होता है रिलेटिंग टू टर्म्स एम्प्लॉयमेंट, नॉन एम्प्लॉयमेंट, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कंडीशंस ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, रिलेटिंग टू सच एंड सच आर रेफर टू एज डिस्प्यूट। ये सेम डेफिनेशन आपको ट्रेड यूनियंस एक्ट में भी मिल जाएगी, सेम डेफिनेशन। तो जो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर ओवरलैपिंग इन ऑल द लेबर लॉज, तो कोई चीज़ यहाँ की है, यू विल गेट टू सी द सेम थिंग इन ट्रेड यूनियंस एक्ट एंड मे बी द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड वॉट नॉट। तो काफ़ी चीज़ें हमारी रिवाइज भी होंगी एज एंड व्हेन वी गो ऑन टू स्टडी द अदर एक्ट्स। ठीक है, ठीक है, ओके। ले ऑफ क्या होता है, ले ऑफ इज फेलियर और इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर, रॉ मटेरियल और एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक और ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। तो किसी भी रीजन से अगर एम्प्लॉयर आपको लेबर खड़ी है और उसको नौकरी नहीं दे पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं इनएबिलिटी, उसको हम कहते हैं ले ऑफ। दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू provide employment, to give employment to the workman whose name is already borne in the muster rolls. ठीक है, अब इसमें कुछ वो हैं एक्सप्लेनेशंस हैं
कि मान लो कोई आदमी है जिसका नाम मास्टर रोल में है और वो आता है नौकरी करने, कम्स प्रेजेंट हिमसेल्फ टू वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स ऑन द डे, और 2 घंटे से ज़्यादा विद इन 2 आवर्स ऑफ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ अगर वो नहीं होता है, उसको काम नहीं मिलता है, तो इज डीम टू बी लेड ऑफ। ठीक है। हाउ एवर मान लो फर्स्ट शिफ्ट में आता है, given employment of the commence provided if the workman instead of being given employment in the commencement, कि उसको मान लो फर्स्ट मॉर्निंग में आया और उसको बोल दिया कि मॉर्निंग में आपको नहीं, आपको सेकंड शिफ्ट में, उसको बोल दिया, वहीं प्रॉमिस कर दिया कि सेकंड शिफ्ट में आपको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, तो फिर उसको ले ऑफ नहीं माना जाएगा, उसको आधे दिन का ले ऑफ माना जाएगा। ही शैल बी डीम्ड टू हैव बीन लेड ऑफ ओनली फॉर 1/2 ऑफ द डे। ठीक है, तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। लॉकआउट इज टेम्पोररी क्लोजिंग ऑफ द प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वहाँ ताला बंद हो गया, और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम, कि एक आदमी, 2 आदमी, 10 आदमी सबको हटा दिया वहाँ से, तो दैट इज रेफर टू एज लॉकआउट। ठीक है। ऑफिस ब्यूरर्स कंटेन एग्जीक्यूटिव्स बट डू नॉट कंटेन्स ऑडिटर्स, ये याद रखना। पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में क्या है, रेलवेज आर पब्लिक यूटिलिटी। ठीक है। पोस्टल, टेलीग्राफ, पावर, लाइट, वाटर, पब्लिक कंजर्वेंसी एंड सैनिटेशन, स्वच्छ भारत। ठीक है। हाउ एवर इफ देर इज एनी एक्स्ट्रा, मान लो कुछ और नया निकल के आता है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है और गवर्नमेंट कहती है कि दिस इज ऑल्सो अ पब्लिक यूटिलिटी, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल में इंडस्ट्री आएगी, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 6 मंथ्स एट अ टाइम के लिए नोटिफिकेशन निकालेगी और 6 मंथ्स के लिए उसको पब्लिक यूटिलिटी स्टेटस दे सकती है। ठीक है। जैसे कोविड में हम लोगों का ईपीएफओ की भी काफ़ी सर्विसेज को एसेंशियल किया गया था, दैट इज़ नॉट पब्लिक यूटिलिटी, बट देन अगेन नेचर बहुत सिमिलर था। रिट्रेंचमेंट क्या होता है, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ द वर्कमैन फॉर द रीजन अदरवाइज देन पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय डिसिप्लिनरी एक्शन। ठीक है, कि डिसिप्लिनरी एक्शन के अलावा अगर किसी ग्राउंड पे उसको निकाल दिया, इट इज रेफर टू एज रिट्रेंचमेंट। बट रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड voluntary retirement, superannuation, termination on for as a result of non-renewal of contract, और termination of service on grounds of continued ill health। तो ये केसेस में इसको रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन है तो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। ऑल अदर केसेस में इफ हिज सर्विसेज आर बीइंग टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, ही इज सेड टू हैव बीन रिट्रेंच्ड। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक definitions। 2P में settlement is not important। strikes, 2Q में strike है। strike का मतलब cessation of work of a body of person employed in any industry acting in combination or concerned refusal under common understanding of any number of persons who have been employed to continue to work or accept employment। ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल है, you can see this definition। इसको सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते, बट इफ़ यू रीड दिस अगेन एंड अगेन, ये थोड़ा सा आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और विल फोकस ऑन मोर रिविजन एंड री रीडिंग ऑफ द बेयर एक्ट, जिससे कि हम भी सिंप्लीफाई कर सकें कि यार इसको कैसे याद करना है। ओके, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, 5th शेड्यूल। ठीक है। वेजेस का मतलब होता है ऑल फॉर्म्स ऑफ रेम्यूनरेशन। देखो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है 2RR में। all forms of remuneration expressed in terms of money which would if the terms of employment expressed, कि भाई अगर आया वर्कर आया और उसकी टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपने जो रखी, उसने टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फुलफिल की, और फुलफिल करने के बाद वो रेमुनरेशन उसको पेबल हो जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट और वर्क डन इन सच एम्प्लॉयमेंट्स। अब वेजेस में क्या इंक्लूड होता है, अलाउंसेस सच एज इंक्लूडिंग DA, housing accommodation, medical attendance, concessional supply of food grains, traveling concession और commission payable for promotion of sales। ये इंपॉर्टेंट है कि वेजेस में क्या नहीं आता है, बोनस नहीं आएगा, PF नहीं आएगा, ग्रेचुटी नहीं आएगा। वेजेस डू नॉट इंक्लूड दीज 3 थिंग्स, PF, बोनस, ग्रेचुटी। ठीक है, वेजेस का पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है। वर्कमैन की डेफिनेशन देख लेना। इसमें वर्कमैन का मतलब होता है एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस। ठीक है, तो अप्रेंटिस अगर आपसे पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में वर्कमैन की डेफिनेशन में आता है कि नहीं आता है, आता है, बिल्कुल आता है। इन एनी इंडस्ट्री टू डू मैनुअल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लरिकल, सुपरवाइजरी वर्क फॉर हायर और रिवॉर्ड under this act in relation to industrial dispute, any such person who has been dismissed, discharged, retrenched in connection with the
or as consequence of dispute whose dismissal, discharge or retrenchment has led to the dispute. However, इसमें वर्कमैन की डेफिनेशन में एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के पर्सनल नहीं आते हैं, पुलिस पर्सनल नहीं आते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ द प्रिजन नहीं आते हैं, और इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयड मेनली इन मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी, सुपरवाइजरी कैपेसिटी में है लेकिन 10,000 से ऊपर, 10,000 मेमसम से ऊपर उसकी सैलरी है, तो फिर उसको वर्कमैन नहीं माना जाएगा. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. In the next session, we'll be looking at the authorities under the Industrial Disputes Act.